So let's see, what is a PN junction? When a p-type assembly PN junction, what is a PN junction? Simply, this is a junction. Junction means the meeting point of two things. So we are very much familiar with the railway junction. That what is the junction? Where two different railway lines meet. That is the PN junction. पटना जंक्शन में क्या होता है कि एक आता है उधर मुगल सराय से कोलकाता वाली रूट जाती है, दूसरी इसमें क्या होती है कि यहाँ से पटना टू गया वाला लाइन मिलती है, एंड टू लाइन्स आर मीटिंग, सो दैट इज द PN जंक्शन. So similar fashion, what is the PN junction? This is the junction of p-type material and n-type material. Okay. So in a definition form, we can say when a p-type semiconductor is suitably joined to n-type semiconductor, the contact surface is called PN junction. In the last class only, we have discussed regarding the formation of PN junction, regarding the formation of the recombination of holes and electrons. Okay, and there is a formation of barrier layer, barrier potential and depletion layer. So let's move ahead and see that process of forming PN junction. You can understand like what is the process of forming PN junction. It's not only the physical like touch. एक दो मटेरियल हम लोग लाते हैं, दोनों को कांटेक्ट में रख देते हैं, वो पी टाइप मटेरियल और एन टाइप मटेरियल में, तो PN जंक्शन बन जाएगा. ऐसा नहीं है. Here we are dealing on the microscopic level. We are dealing with the atoms. So there is something different kind of the formation of the PN junction. उसमें क्या करते हैं कि उसमें हम लोग वो दोनों को हीट करते हैं, हीट करने के बाद बीच में एक इंडियन नाम का मटेरियल डालते हैं, डालने के बाद फिर दोनों को कांटेक्ट में लाते हैं, फिर उसको कूल करते हैं. ये प्रोसेस होता है. और अगर माइक्रोस्कोपिक पे लेवल जाए तो और भी छोटी छोटी बहुत सारी चीजें सावधानियां बरतनी पड़ती है. दैट इज बियॉन्ड आवर सिलेबस, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ आवर सिलेबस, सो दैट आई एम नॉट डिस्कसिंग इन डिटेल. वेट, सम पीपल वांट टू ज्वाइन. Okay, so now the condition is in the last class. In the last class, we have already discussed about the junction, and so after the forming PN junction, what can be the external condition? External condition can be that with the PN junction, means with when the p-type material is suitably joined to the n-type material, and then we leave it. हम लोग इसमें कुछ नहीं करते हैं, जस्ट है. तो एक कंडीशन होगा. दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि इसमें हम लोग क्या करें कि बाहर से वी आर अप्लाइंग एन एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, एंड द एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्सेस में अगर हम लोग कनेक्ट करें तो उसको कनेक्ट करने का क्या तरीका हो सकता है. एक तरीका ये हो सकता है कि पी टाइप मटेरियल के साथ हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी करें और एन टाइप मटेरियल के साथ हम लोग नेगेटिव टर्मिनल बैटरी करें. दिस पार्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज द फॉरवर्ड बायस. And the second condition can be that applying reverse bias means what? Means that we apply the negative terminal of the battery across the p-type material and positive terminal of the battery across the n-type material. So that particular condition is known as the reverse bias. So see what will be happen with in these three conditions, means with applying the external voltage source. The first condition without applying external voltage source, the second condition with applying forward voltage source, in more accurate form we can say that applying forward bias and then applying reverse bias. Okay.
Can you see my screen? Someone can respond. Yes, sir. Yes. Okay. Yes, sir. Okay. So see, the first condition, without applying external voltage source. Without applying external voltage source, that we already discussed in the last class, that at the junction these electrons will recombine with this hole, and at the junction there is a layer of positive charge and negative charge. जो पॉजिटिव जो एन साइड मटेरियल होगा, इन दैट साइड देयर इज अ लेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज, एंड इन द पी साइड मटेरियल देयर इज लेयर ऑफ नेगेटिव चार्ज. So, and this particular is known as region is known as the depletion region or depletion layer, and here that is also known as the barrier layer. बैरियर क्यों? क्योंकि इसमें हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रॉन्स को फर्दर रिकॉम्बिनेशन से क्या करेगा, रोकेगा. हेंस दिस पार्टिकुलर layer, this particular place is also known as the barrier layer. And with the implementation of this formation of negative charge layer and positive charge layer, there is a formation of voltage of potential. एक बैटरी की तरह, स्मॉल बैटरी की तरह काम करेगा, और कह सकते हैं कैपेसिटर की तरह भी काम करेगा. कैपेसिटर में क्या होता है कि एक प्लेट होता है जो पॉजिटिव चार्ज से कनेक्टेड होता है, दूसरा क्या होता है, निगेटिव चार्ज से कनेक्टेड होता है. ठीक है, निगेटिव और मतलब एक प्लेट पॉजिटिव चार्ज से चार्ज होता है, दूसरा क्या होता है, निगेटिव से चार्ज होता है. एंड हियर दिस इज आल्सो एक्टिंग लाइक अ पॉजिटिव प्लेट एंड नेगेटिव प्लेट. दैट इज नोन एज द जंक्शन कैपेसिटेंस. उसमें भी हम लोग कहते थे स्टैटिक डायनेमिक, बट अगेन दैट इज बियॉन्ड आवर सिलेबस. in the old syllabus we have to study this. ठीक है. So at the junction there is a tendency for the free electrons at the junction there is a tendency for the free electrons to diffuse over to the p side and holes to the n side. This process is called diffusion. Another important point that you have to remember, what is the name of this process? The name of this process is diffusion. ये क्या होता है कि स्मॉल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है. सर आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है. स्क्रीन नहीं आ रहा है. ओके. आ रहा है सर. आ रहा है सर. आ रहा है सर. आ रहा है सर. नहीं आ रहा सर. सर आ रहा है. पिन करने पे आ रहा है सर. पिन कर लो. आ रहा है. आ रहा है सर. ओके. तो ये ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके हैं कि डिस्कस कर चुके हैं. नाउ we see the second condition, and second condition is the applying voltage across PN junction. We are applying a voltage across the PN junction, and in the first case we are going for forward biasing. Forward biasing means what? We are applying positive voltage to the p-type material and negative voltage to the n-type material. तो अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो ऐसा करने से क्या होगा, तो ऐसा करने से देखिए एक फिगर में क्या होगा, ये हमने क्या किया है कि पॉजिटिव वोल्टेज सोर्स. हाँ सर नहीं आ रहा है स्क्रीन. सर पिन किया तब भी आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है. आपको नहीं आ रहा कि किसी को नहीं आ रहा है? अदर पीपल कैन रिस्पॉन्ड. ये ठीक तो आ रहा है. आ रहा है सर. आ रहा है सर. तो एक काम कीजिए, आप में प्रॉब्लम होगा फिर से लॉग इन कीजिए, लॉग आउट करके. कुछ आपके साथ प्रॉब्लम होगा फिर. प्रेजेंटेशन ये छोटी आई पर क्लिक करो, पिन करो. क्या? प्रेजेंटेशन एचओडी आई है ना, वहां पे पिन करो, आ जाए. ओके चलिए लेट्स स्टार्ट. आप प्रॉब्लम रिजॉल्व. सर नहीं आ रहा है. करने पे भी नहीं आ रहा आपका स्क्रीन. किसी को नहीं आ रहा है कि एक दो लड़कों को नहीं आ रहा है? सर आ रहा है. सर आ रहा है सर.
आपको फिर सर आ रहा है सर। प्रॉब्लम होगा देख लीजिए। सबको आ रहा है, आ रहा है सर, आ रहा है सर, आ रहा है। सर आ रहा है सर। तो आप लॉग आउट करके लॉग इन कीजिए ना, फिर देखिए। सर 2-3 बार कर चुके सर, नहीं हो रहा है सर। अब इसका क्या सोल्यूशन है? नीचे में एक बटन और होगा H2 सिर्फ ये लोग को व्हाट्सएप सुनो ना, हाई करके। छोड़ दो, नहीं पढ़ो। पे शेयर कर दीजिए, देख लेगा सर व्हाट्सएप पे। सुनिए सुनिए, हाँ रिगार्डिंग द नोट, मैं क्या करूंगा कि गूगल क्लासरूम में जस्ट क्लास के बाद गूगल क्लासरूम आप सभी लोग जो अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं फिर से ज्वाइन कीजिएगा। क्लास के जस्ट बाद मैं गूगल क्लासरूम में नोट्स पोस्ट कर दूंगा। सर तो अभी समझ में कैसे आएगा? सर फिर से स्क्रीन शेयर करिए ना। ओके वेट, इज इट ओके नाउ? यस सर। यस सर। यस सर। चलिए ठीक। So see, there is a layer of negative charge and positive charge। और जब नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज का लेयर बन रहा है, हाँ प्लीज म्यूट योरसेल्फ। तो इसमें क्या हो रहा है कि पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का लेयर बन रहा है। तो आप लोग क्लास 12 फिजिक्स से पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में। तो ये क्या कर रहा है कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से जनरेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हमने जो किया वो यहाँ पे जो हमने किया था, जो एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है वो इस तरीका से कर रहा है। इधर क्या है पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज इससे कनेक्टेड है एंड नेगेटिव चार्ज क्या है इससे कनेक्टेड। तो यह जो एक्सटर्नल हमने वोल्टेज सोर्स अप्लाई किया है वो एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स का इस तरह से क्या क्या किया, जो जंक्शन के द्वारा पोटेंशियल बैरियर के द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसको ये क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, उसको क्या करेगा, वीकेन करने की कोशिश करेगा, कमजोर करने की कोशिश करेगा। तो इसके क्या होगा, यहाँ पे जो डिप्लीशन विड्थ है वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर सपोज पहले इतना था तब क्या हो जाएगा, इसका आधा से भी और कम हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा। वो इस पे भी डिपेंड करेगा कि कितना हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स क्या कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। जितना एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स हम लोग ज्यादा अप्लाई करेंगे उतना ही क्या होगा कि वो क्या होगा कि ये थिन होता जाएगा, ठीक है। और इसके बाद फिर क्या होगा, इसके बाद फिर क्या होगा कि तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कनेक्टेड है, इधर क्या है होल्स है, यहाँ पे क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। वो किससे कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो ये क्या करेगा, या जो पॉजिटिव चार्ज है उसको ये रिपेल करेगा, होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा। इधर क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जब रिपेल करेगा तो स्टार्टिंग में अगर एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स है उसका वैल्यू बहुत कम है, 0 वोल्ट है। तो 0 वोल्ट है तो क्या होगा कि कुछ नहीं, रिपेल करेगा ही नहीं। जैसे ही थोड़ा सा और ज्यादा हम लोग इंक्रीज करेंगे, तो जैसे ही इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि रिपेल करने की कोशिश करेगा। लेकिन यहाँ पे क्या है कि इसके द्वारा जो पोटेंशियल बैरियर बन रहा है उसका वैल्यू क्या होगा, उसका वैल्यू ज्यादा रहेगा। तो उसके चलते क्या होगा कि ये इफेक्टिव नहीं होगा। फिर जैसे जैसे क्या हो जाएगा होगा कि इसको इंक्रीज करेंगे, तो इंक्रीज करने के चलते क्या होगा, इंक्रीज करने के चलते इसमें क्या होगा कि इसका वैल्यू जो एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स है दैट विल बी मोर इफेक्टिव इन कंपैरिजन टू द पोटेंशियल बैरियर। और उसके चलते क्या होगा कि इसको ज्यादा पावर मिलेगा। तो वो क्या होगा, ये इस जंक्शन को क्रॉस कर जाएगा, इस जंक्शन को क्रॉस कर जाएगा। इसको जो है इलेक्ट्रॉन्स है जो यहाँ से इधर आ रहा था, तो उस इलेक्ट्रॉन्स को हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे कि फर्दर जंक्शन क्रॉस करने से रोक कौन रहा था, रिकॉम्बिनेशन को रोक कौन रहा था। तो रिकॉम्बिनेशन को रोकने के लिए हो रहा था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स था वो यहाँ से क्रॉस कर रहा था, क्रॉस करके अब यहाँ से यहाँ तक, तो यह जो रीजन है इसमें तो ऑलरेडी रिकॉम्बिनेशन हो चुका है। तो यह फर्दर रिकॉम्बिनेशन कैसे होता है, यह इलेक्ट्रॉन्स जो है जो इधर क्रॉस करके इस होल्स से क्या करता कि कंबाइन करता, इस अगर होल्स से कंबाइन करता, इस होल्स से कंबाइन करता तभी तो रिकॉम्बिनेशन होता। लेकिन
यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो नहीं हो रहा है। तो उसको रोक कौन रहा था कि यहाँ पे जो निगेटिव चार्ज है वो क्या कर रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स को इधर आने से रोक रहा था। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे इतना ज्यादा यहाँ पे निगेटिव चार्ज एक्सटर्नल में निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी सप्लाई किए हैं, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को पुश करेगा, पुश इतना करेगा कि इसको इस लेयर को क्या करे, क्रॉस कर जाए। तो जब क्रॉस कर जाएगा तो इलेक्ट्रॉन्स इधर से फिर से इधर आना शुरू हो जाएगा, यहाँ से होल्स से कॉम्बिनेशन होगा। अब यहाँ पे जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं एन साइड में उनकी कमी होगी, तो कमी होगा तो इधर से निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करते जाएगा। तो इस चलते क्या रहा कॉम्बिनेशन, ये निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन को पार करके इधर आ जाएंगे, वो होल से कॉम्बिनेशन करेंगे, फिर से क्या हो जाएगा कि इस तरीका से फिर क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है, तो फिर से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से क्या होगा कि एक साइकिल चलेगी, वी आर गेटिंग अ कंप्लीट साइकिल फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और इससे क्या होगा कि करंट कंडक्शन को ये क्या करेगा, सपोर्ट करेगा। क्यों, क्योंकि वी नो फ्रॉम द हाई स्कूल फिजिक्स, हाई स्कूल फिजिक्स से हम लोग क्या जानते हैं कि करंट कंडक्शन कब कहा जाता है, करंट का फ्लो तभी होता है कि द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द करंट। जब तक चार्ज का क्या होता है कि वन प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसफर नहीं होता है, तब तक हम लोग नहीं कर सकते हैं कि क्या हो रहा है कि करंट फ्लो हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चार्ज, द इलेक्ट्रॉन विथ 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज का क्या हो रहा है कि ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और दूसरी एक और बात हम लोग जानते हैं कि करंट कंडक्शन के लिए क्या होना चाहिए कि कहीं भी ओपन सर्किट नहीं होना चाहिए, एक पूरा का पूरा वायर के थ्रू, एक पूरा का पूरा सिस्टम के थ्रू, एक लूप के थ्रू, एक लूप का फॉर्मेशन होना चाहिए, उसमें कंटिन्यूटी होनी चाहिए। यहाँ पे इस लूप को ब्रेक कौन कर रहा था, लूप को ब्रेक कर रहा था पीएन जंक्शन, जो कि करंट को फ्लो के अलाउ नहीं कर रहा था। अब क्या हो रहा है कि अब हमारा इस लूप को कोई ब्रेक करने वाला नहीं बचा। अब क्या हो रहा है कि कंटिन्यूअस करंट का क्या हो रहा है कि फ्लो हो रहा है। हेंस या इसके पार्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा कि करंट का कंडक्शन हो रहा है, एंड हेंस द मटेरियल विल एक्ट लाइक अ कंडक्टर। इस पार्टिकुलर कंडक्शन में क्या होगा कि ऑलमोस्ट लाइक एक कंडक्टर की तरह, ऑलमोस्ट लाइक कंडक्टर की तरह काम करेगा। तो अगेन आई एम कमिंग टू द पॉइंट, सेमीकंडक्टर मटेरियल, सेमीकंडक्टर मटेरियल वैसा मटेरियल होता है जिसके थ्रू करंट जो होता है कि करंट का फ्लो वो सिचुएशनल होता है कि डिपेंड कब उसकी रेसिस्टिविटी की बात करें, रेसिस्टिविटी लाइज बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। उसके बाद फिर हम लोग क्या करें कि लाइज बिटवीन कंडक्टर एंड इंसुलेटर। उसके बाद फिर क्या होगा कि दिस इज नॉट ओनली द प्रॉपर्टीज इज दैट द रेसिस्टिविटी और कंडक्टिविटी changes rapidly, changes drastically with the external condition। एक्सटर्नल कंडीशन के अप्लाई करने के साथ वो क्या होता है कि उसका जो कंडीशन होता है वो काफी तेजी से चेंज करता है। और वो चेंज कैसे करता है, चेंज ऐसे करता है कि दो कंडीशन पे, एक तो जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल पेयर क्या होते हैं, जनरेट होते हैं। लेकिन वही हमारे लिए सफिशिएंट नहीं है। सपोज वी आर नॉट satisfied with that much current conductivity, then we have the option, and the option is known as the doping। हम लोग p टाइप और n टाइप सेमीकंडक्टर मटेरियल बनाते हैं विथ द डोपिंग ऑफ पेंटावैलेंट एंड ट्राइवैलेंट इम्प्योरिटी। और जितना ज्यादा हम लोग डोपिंग करेंगे उतना ज्यादा करंट का कंडक्टिविटी को क्या होगा कि कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सो फाइनली in one point we can say that we have the control over the flow of the current, and that's what we want in each and every engineering scenario। कि हर चीज पे अगर हमें कंट्रोल हो जाए तो वही तो चाहते हैं कि कितना डिजायरेबल है कि फिर जैसा जैसा कंडीशन होगा उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं कि वैरी कर सकते हैं। सो सी अगेन आई रिपीट with the application। ये कोई टाइम है ज्वाइन करने का? नेक्स्ट क्लास से आप लोग सीरियस रहिए, नहीं तो फिर 5 मिनट के बाद किसी को एंट्री नहीं देंगे। तो ये देखिए, तो इसमें क्या हो रहा है
कि विद अप्लाइंग द एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स एक पूरा का पूरा क्या हो रहा है कि करंट फ्लो का एक साइकिल बन रहा है, एक लूप बन रहा है। और जो बैरियर डिप्लीशन लेयर है, बैरियर का विड्थ है, वो क्या हो रहा है, थिन हो रहा है, पतला हो रहा है। ठीक है। और अगर हम लोग रेसिस्टिविटी के टर्म्स में बात करें तो ठीक है, पहले रेसिस्टिविटी क्या था, ज्यादा था। अब धीरे धीरे क्या हो रहा है कि रेसिस्टिविटी, जंक्शन का रेसिस्टिविटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ये कम से कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि दैट विल डिपेंड अपॉन द डिप्लीशन विड्थ। जितना डिप्लीशन विड्थ कम हो रहा है उतना ही इसकी रेसिस्टिविटी क्या होगी, कम होगी। और ओल्ड सिलेबस में हम लोग को ये भी डिटेल में पढ़ना था जंक्शन रेसिस्टेंस, लेकिन आप लोग को नहीं पढ़ना है वो, तो चलिए उतना डिटेल में नहीं जाएंगे। अदरवाइज that used to take already almost one class for junction capacitance and one class for junction resistance। ठीक है, तो आप लोग एज्यूम कीजिए। चलिए, so now द सेकंड कंडीशन क्या हो सकता है कि सेकंड कंडीशन में देखिए कि सेकंड कंडीशन में रिवर्स बायस हम लोग अप्लाई करते हैं। रिवर्स बायस कहने का मतलब क्या होगा कि देखिए इस फिगर में मैंने नहीं बनाया, लेकिन आप लोग जूम कीजिए कि यहाँ पे एन टाइप ऑफ मटेरियल के साथ हम लोग क्या किए हैं कि पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अप्लाई किए। पी टाइप ऑफ मटेरियल के साथ हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी ज्वाइन करेंगे। तो उस पार्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा कि उल्टा एन टाइप से क्या है कनेक्टेड, पी टाइप, तो वो इलेक्ट्रॉन को जंक्शन के थ्रू पुश करने के बजाय क्या करेगा, वो क्या करेगा कि और उल्टा अपने डायरेक्शन में अट्रैक्ट करेगा। मतलब जो भी नियर बाई फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या हो जाएंगे कि जंक्शन से दूर होंगे। इन द सिमिलर फैशन जितने भी होल्स हैं वो पी टाइप मटेरियल के अंदर, वो क्या होगा कि जो नियर बाई जंक्शन थे वो जंक्शन से होल से दूर होके क्या आ जाएंगे, इधर आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका अपोजिट चार्ज क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो हम यहाँ पे चाह रहे थे कि जंक्शन को तोड़ना चाह रहे थे, जंक्शन को कमजोर करना चाह रहे थे, थिन करना चाह रहे थे, ताकि उसके थ्रू करंट फ्लो हो सके, इलेक्ट्रॉन्स और सोल्स जंप कर सके। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उल्टा कंडीशन हो रहा है और वो चौड़ा हो जा रहा है, थिक हो जा रहा है, और उसकी रेसिस्टिविटी क्या हो जा रही है, इंक्रीज हो रही है। सो इन दैट पार्टिकुलर कंडीशन, इस पार्टिकुलर कंडीशन में क्या होगा कि इसके थ्रू कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा। एंड that particular in that particular condition means in the case of the reverse bias, this PN junction will almost act like insulator। Again I am repeating, आप लोग इंसुलेटर और कंडक्टर एकदम से नहीं बना दीजिएगा। I am saying that almost, I am using the word almost। ठीक है, क्योंकि अगर पूरा का पूरा हो गया तब तो सेमीकंडक्टर ही नहीं रहेगा, सेमीकंडक्टर ही नहीं रहेगा तो आगे इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म। इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत यही सेमीकंडक्टर से होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स की शुरुआत यही पीएन जंक्शन से होती है। जब 1948 में एक पीएन जंक्शन का आविष्कार हुआ था, डायोड का आविष्कार हुआ था, तभी से इलेक्ट्रॉनिक्स एक सेपरेट ब्रांच के रूप में आया। वरना क्या होता था कि एक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम का कोई ब्रांच नहीं था, ओनली इलेक्ट्रिकल वाज देयर। ठीक है, सो ये हो रहा है कंडीशन। ये सब नोट्स है, यू कैन सी। रिवर्स बायस भी हमने डिस्कस किया। ठीक है, कंक्लूजन। तो व्हाट कंक्लूजन वी कैन ड्रॉ? कंक्लूजन from the above discussion, it follows that with reverse bias to the junction, a high resistance path is established and hence no current flow occurs. On the other hand, with forward bias to the PN junction, a low resistance path is set up and hence current flows in the circuit। ठीक है, इवन कि आइडियल केस में जब हम लोग बहुत ज्यादा स्पेसिफाई नहीं करते हैं तो उस केस में हम लोग ये भी एज्यूम करते हैं कि जो फॉरवर्ड बायस होता है हम लोग एकदम कंडक्टर की तरह एज्यूम करते हैं, और रिवर्स बायस होते हैं उसको इंसुलेटर की तरह, उसके थ्रू कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। अगेन बट दैट इज द आइडियल कंडीशन। now we are coming to the volt ampere VI characteristics of PN junction। ठीक है, what is this?
दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग पढ़े होंगे क्लास हाई स्कूल 11-12 के दिनों में। कैरेक्टरिस्टिक क्या कहता कि इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेट द ग्राफ, ठीक है। सो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ग्राफ को इंडिकेट करता है। किस चीज का ग्राफ है, पीएन जंक्शन, ठीक है। पीएन जंक्शन में किस चीज का ग्राफ है, तो वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स, वोल्टेज एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन, मतलब वोल्टेज और करंट का ग्राफ है। तो वोल्टेज और करंट का ग्राफ का मतलब क्या होगा कि जब हम लोग क्या करते हैं कि वोल्टेज वेरी करते हैं, अभी हमने बात किया कि एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स के बारे में। तो जब हम लोग एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स अप्लाई करते हैं, एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स जब अप्लाई करते हैं तो उसमें हम लोग जैसे जैसे वेरी करेंगे एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, उसके अकॉर्डिंग उसके करंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, जंक्शन के थ्रू जो करंट फ्लो होता है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, यही हमें क्या करना है, डिस्कस करना है, ठीक है। तो हमें वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करना है, तो उसके करने के लिए क्या करेंगे, किसका, पीएन जंक्शन का। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एक पीएन जंक्शन लिया। उसके थ्रू हमें कैसा चाहिए, उसके थ्रू हमें चाहिए वोल्टेज और करंट। तो उसके एक क्या कर दिया, यहाँ पे एमीटर लगा दिया। एमीटर के बदले यहाँ पे लिखा हुआ है मिली एमीटर, क्यों लगाए हैं वो हम लोग अभी डिस्कस करेंगे कुछ देर बाद। दूसरा क्या कर दिया, वोल्ट मीटर लगा दिया। अभी आप लोग जानते होंगे हाई स्कूल फिजिक्स से कि जब भी एमीटर कनेक्ट होता है तो वो क्या होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। जब भी वोल्ट मीटर कनेक्ट होता है तो किस में होता है, पैरेलल में कनेक्ट होता है। सो यूजिंग दैट कंसेप्ट वी कनेक्टेड द एमीटर इन सीरीज द पीएन जंक्शन एंड वोल्ट मीटर इन पैरेलल विद द पीएन जंक्शन। अब साथ में हमने क्या किया, यहाँ पे एक रेसिस्टेंस लगाया है। वो रेसिस्टेंस क्यों लगाते हैं, रेसिस्टेंस इस चलते लगाते हैं प्रोटेक्शन के लिए। जैसे कि देखते हैं कि अपने घरों में वोल्टेज का फ्लक्चुएशन होता है, कभी कभी एक वोल्टेज बढ़ जाता है, एक वोल्टेज कम जाता है, डिम हो जाता है, ठीक है। तो उसके जो वोल्टेज फ्लक्चुएशन होगा, तो वोल्टेज फ्लक्चुएशन के चलते क्या हो सकता है कि जो इंस्ट्रूमेंट है एमीटर, वोल्ट मीटर, या फिर वोल्ट मीटर तो नहीं लेकिन स्पेशली एमीटर का रेसिस्टेंस काफी कम होता है, एमीटर को डैमेज कर सकता है, इवन कि पीएन जंक्शन को डैमेज कर सकता है। तो इसके सेफ्टी के लिए हम क्या करते हैं कि हम लोग एक रेसिस्टेंस कनेक्ट करते हैं। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या किया कि हमने बैटरी करें या एक्सटर्नल सप्लाई जो करें, उसके साथ हम लोग क्या किया कि स्विच है, क्या है जो स्विच हम लोग घर में यूज करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि एक हम लोग क्या लिए हैं कि पोटेंशियोमीटर लिए हैं। अब पोटेंशियोमीटर क्या है, आप लोग इलेक्ट्रिकल वाले भी जानना चाहिए, कंप्यूटर वाले भी जानना चाहिए। अगर नहीं जानते तो इतना जानिए कि यह जो वोल्टेज आ रहा है वो को पूरा का पूरा क्या होगा, किस रेसिस्टेंस के अक्रॉस क्या हो जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो हमें जितना वोल्टेज चाहिए तो उस नॉब को एक हम लोग यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल से ले रहे हैं, एक ऊपर से हम लोग यहाँ से ले रहे हैं। तो इसके नॉब को वेरी करके, एरो को वेरी करके, स्किन नहीं आ रहा है। हेलो, हाँ वेट, नाउ इट्स ओके। सर नहीं आ रहा है। सर शो कर रहा है। आ रहा है सर, आ तो रहा है सर। हाँ आ रहा है। प्रॉब्लम होगा सर। चलिए मैं फिर से करता हूँ। बहुत ज्यादा ही इसको प्रॉब्लम हो रहा है, सबको आ रहा है, इसी को नहीं आ रहा है। प्लीज उतना ज्यादा, अरे अमित होता है भाई, हाँ ज्यादा बात मत कीजिए भाई, क्लास चल रही है। नाउ कैन यू सी, यस सर। ओके।
तो सिर्फ इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि पोटेंशियल मीटर यूज करते हैं। ये सब जनरल जाइए जनरल इंजीनियरिंग की आप लोग, ठीक है। कहीं भी इंटरव्यू में जाइएगा तो ये सब छोटा छोटा चीज पूछता है, यही हमारे पास चांसेस रहते हैं कि करने के लिए। तो इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि इसके थ्रू हम लोग ले रहे हैं, इसके थ्रू हम लोग ले रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि नॉब के वेरिएशन के अकॉर्डिंग वोल्टेज हम लोग क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। ठीक है। एक और चीज कि हम जो भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक्स में सर्किट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है कि अगर हम लोग डिस्कशन करें कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट में हम लोग क्या करते हैं कि हाई वोल्टेज यूज करते हैं। हम लोग अपने घर में देखते हैं कि 230 वोल्ट यूज करते हैं सिंगल फेज के लिए, 415 वोल्ट होता है 3 वोल्ट के लिए, और तो और जो पोल पर जिससे हम लोग लेते हैं, या फिर और ट्रांसमिशन लाइन में तो 4 लाख 7 लाख तक हम लोग क्या करते हैं कि यूज करते हैं। लेकिन जब भी इलेक्ट्रॉनिक्स की बात होती है तो इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग लो वोल्टेज यूज करते हैं, लो वोल्टेज यूज करते हैं। तो इसमें क्या है कि लो वोल्टेज यूज करते हैं तो जो भी जनरली हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स में यूज करते हैं वो 30 वोल्ट से ज्यादा नहीं करते हैं, 30 वोल्ट से कम ही करते हैं। ठीक है। तो एक और चीज मैंने पिछले क्लास में बताया था कि जो बैरियर पोटेंशियल होता है वो इन द केस ऑफ सिलिकॉन डायोड कितना होता है, 0.7 वोल्ट का होता है। इन द केस ऑफ जर्मेनियम डायोड ये कितना होता है, 0.3 वोल्ट का होता है। ठीक है। तो ऐसे भी डायोड वगैरह से जितना होता है मुझे तो लगता है कि 10-15 वोल्ट से ज्यादा नहीं जाते हैं हम लोग इसमें, स्पेशली जब डायोड का वो करते हैं, डायोड के थ्रू एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है। अब देखिए, तो ये हुआ सर्किट कनेक्शन। ठीक है। सर्किट कनेक्शन एक केवल इसके लिए नहीं है, आप लोग को लैब भी करना है। तो और भगवान करे जल्दी से कोरोना खत्म हो तो हम लोग अपने जो लैब है उसमें भी करेंगे। तो उसमें वो अगर अपने हाथ से सब कुछ कनेक्ट करते हैं तो उसकी बात अलग होती है, वर्चुअल की बात अलग होती है। लेकिन चलिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, सो नॉट डिस्कशन। तो द फर्स्ट केस इज द जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज। जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज का मतलब क्या होगा कि हम लोग कोई भी एक्सटर्नल वोल्टेज नहीं देते हैं। सिमिलर कि हम लोग क्या करते हैं कि जो पहला कंडीशन किए थे कि कोई भी हम लोग बाहर से कनेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है। सो व्हेन द एक्सटर्नल वोल्टेज इज जीरो दैट इज सर्किट इज ओपन एट के। ठीक है। द पोटेंशियल बैरियर एट द जंक्शन डज नॉट परमिट करंट फ्लो, देयरफॉर the circuit current is zero as indicated by point O in the graph। सर्किट के थ्रू जो करंट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। जीरो होगा वो किस पे हो रहा है कि देखिए पॉइंट O मतलब ओरिजिन को ये पॉइंट O इंडिकेट कर रहा है। जब वोल्टेज कुछ भी हम लोग नहीं देंगे तो कोई भी करंट भी क्या होगा, फ्लो नहीं करेगा। अब देखिए जो सेकंड कंडीशन हो रहा है कि फॉरवर्ड बायस। चलिए फिगर से ही देखते हैं। फॉरवर्ड बायस के केस में क्या होगा कि जैसे जैसे हम लोग क्या करेंगे कि वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, तो वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा कि धीरे धीरे करंट का वैल्यू बढ़ेगा, यहां से ऐसे ऐसे आएगा, धीरे धीरे बढ़ना शुरू होगा। लेकिन जैसे ही ये क्या करेगा कि अगर बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस कर जाएगा, अगेन आई रिपीट, बैरियर पोटेंशियल 0.7 वोल्ट in the case of silicon and 0.3 volt in the case of germanium। यहाँ पे हमने जर्मेनियम का एग्जांपल लिया है। ठीक है। लेकिन ज्यादातर केसेस में क्या होता है कि सिलिकॉन यूज होता है। लास्ट क्लास में मैंने बताया भी कि सिलिकॉन इज सिनोनिम टू इलेक्ट्रॉनिक्स इन मैनी सिटीज ओवर द वर्ल्ड वेयर द वर्क ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स is famous. The city is even given the name as the Silicon Valley। In India, we gave the name of Bangalore as Silicon Valley। इलेक्ट्रॉनिक्स का ज्यादातर काम क्या होता है, चिप वगैरह मैन्युफैक्चरिंग, वेल ऐसे वगैरह क्या होता है, बंगलोर में ही अभी तक होता है। ठीक है। तो स्टार्टिंग में क्या होगा कि जैसे जैसे यहाँ पे आएगा तो ऐसे आएगा, तो स्टार्टिंग में स्लो इंक्रीज होगा। ठीक है। जैसे ही ये बैरियर लेयर को पोटेंशियल को क्रॉस कर देगा एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स, उसके बाद क्या होगा कि काफी तेजी से इंक्रीज करना शुरू करेगा। ठीक है। तो ये होता है इन द केस ऑफ द फॉरवर्ड बायस। अब देखिए हमें अपने से बनाना है, तो हमें अपने से बनाना है तो क्या जानते हैं कि ऑफ कोर्स
डिपेंड करेगा कि हम लोग लैब करेंगे, फ्राइडे को हम लोग लैब करेंगे, इसी चीज का लैब करेंगे। तो इस पे आप लोग ज्यादा फोकस करें कि अगर हमें जो वोल्टेज लेना है तो कितना वोल्टेज लेना है। सपोज हमें कुछ लैब मैनुअल वगैरह से नहीं देख रहे हैं, प्रोसीड्योर पे ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो हम कितना वोल्टेज लेंगे। तो अगर हम लोग मेरा है कि हम सिलिकॉन डायोड ले रहे हैं, तो सिलिकॉन डायोड में यहाँ पे लेंगे 0.7 पे जानते हैं कि 0.7 होता है, तो 0.7 के लगभग तब हम लोग क्या करेंगे कि 0.2, 0.6, 0.4, 0.6, 0.8 ऐसे ऐसे करके हम लोग स्टेप्स ले सकते हैं। अगर जर्मेनियम है तो इसका जान रहे हैं कि 0.3 वोल्ट होता है, तो उस केस में हम लोग वेरिएशन, वोल्टेज वेरिएशन कितना रखेंगे, वोल्टेज वेरिएशन रखेंगे 0.1, 0.2, 0.3 ऐसे करके हम लोग वेरिएशन रख सकते हैं। ठीक है, कितना 1 से 2 वोल्ट तक जाएंगे उतना ही पता चल जाएगा, ज्यादा हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो ये हम लोग एक्स एक्सिस पे रखते हैं। अब देखिए यहाँ पे करंट कितना आएगा, जैसा कि हमने डिस्कस किया कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में वोल्टेज और करंट बहुत कम होता है। जो इस केस में डायोड के थ्रू जो करंट होता है वो क्या होता है कि जो फ्लो करता है वो क्या होता है, मिली एम्पियर में फ्लो करता है। ठीक है, तो मिली एम्पियर में फ्लो करता है। तो यहाँ पे एमीटर जो ऑफ कोर्स हम नहीं भी जानते हैं, तो कि हमें इतना कॉमन सेंस सब कुछ एक तो हुआ कि सब कुछ लैब मैनुअल में दिया हुआ है, जस्ट हम लोग पढ़े प्रोसीड्योर, इतना स्पेसिफिकेशन दिया हुआ है, ये कनेक्ट करना, ये कनेक्ट करना, ये कनेक्ट करना। दूसरा क्या सोच सकता है कि हम कुछ नहीं दिया हुआ है, हम कॉमन सेंस का यूज करें, हमें इंटरव्यू भी अटेंड करनी है जॉब के लिए, हमें कहीं भी पूछा जाएगा, थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट भी हमें रखना है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जो हम लोग एमीटर लेंगे वो मिली एमीटर का रेंज का लेंगे। हम लोग जो वोल्ट मीटर लेंगे, जानते हैं कि 0.3 और 0.7 होता है, तो हम लोग 5 वोल्ट 10 वोल्ट का ही वोल्ट मीटर लेंगे, तो वो हमारा सफिशियंट है, उतना से हमारा काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा। अब बात यह आती है कि हम ज्यादा क्यों नहीं लेते हैं, मिली एम्पियर की जगह पर, मिली एमीटर की जगह पर हम लोग एमीटर ले ले। तो आप लोग अब नहीं पढ़े होंगे, एक मेजरमेंट में पढ़ना होता है कि एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, आइडियल नहीं होता है, हर इंस्ट्रूमेंट में कुछ न कुछ एरर होते ही हैं। तो अगर ज्यादा रेंज के हम लोग इंस्ट्रूमेंट ले लेंगे तो उसमें जो थोड़ा बहुत ये जो रेंज होगा तो इतना वो उसके लिए निग्लिजिबल होगा एरर। लेकिन अगर वो मिली एम्पियर में के रेंज में आते हैं तो वो एरर यहाँ पे निग्लिजिबल नहीं होगा, दैट विल बी सिग्निफिकेंट। सो वी विल टेक मिली एम्पियर। अगेन आई रिपीट, हम लोग जान गए कि वोल्ट मीटर किस रेंज का लेंगे, एमीटर किस रेंज का लेंगे। अब यहाँ पे शुरू में जब से यहाँ से ऐसे ऐसे आएगा तो शुरू में स्लो करंट का वैल्यू स्लो होगा, स्लोली इंक्रीज करेगा, उसके बाद तेजी से इंक्रीज करेगा। अब देखिए एक पार्टिकुलर पॉइंट जहां पे आके करंट शार्पली इंक्रीज करने लगता है, उस पार्टिकुलर पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, उस पार्टिकुलर पॉइंट को हम लोग कहते हैं नी वोल्टेज, KNEE, नी वोल्टेज। नी मतलब समझते हैं ना, नी मतलब घुटना होता है। ठीक है, तो घुटना होता है तो मतलब क्यों, क्योंकि वहां के बाद शार्पली इंक्रीज करता है। अगेन इट कैन बी आस्क्ड इन अदर लैंग्वेज इन योर इंटरव्यू that what is the knee voltage, value of knee voltage in the case of germanium and in the case of silicon। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0.3 वोल्ट। द वैल्यू ऑफ नी वोल्टेज इज 0.3 वोल्ट इन द केस ऑफ जर्मेनियम एंड 0.5 वोल्ट इन द केस ऑफ सिलिकॉन। इट इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट फॉर योर इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू, द सेम जो मैं देखूंगा कि इंटरव्यू में ज्यादा पूछा जाता है, इट्स माई ड्यूटी कि आप लोग को क्विजेज वगैरह होंगे उसमें भी मैं इस टाइप का क्वेश्चन दूंगा जो ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो द फर्स्ट कंडीशन 0 में 0 होगा, दैट इज इंडिकेटेड बाय पॉइंट O। सेकंड कंडीशन फॉरवर्ड बायस। अब आए थर्ड कंडीशन हम लोग क्या आ रहे हैं कि थर्ड कंडीशन हम लोग आ रहे हैं रिवर्स बायस के केस में आ रहे हैं। तो रिवर्स बायस के केस में मतलब यहाँ पे देखिए वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज हो जाता है वो क्या होता है, निगेटिव होता है। ठीक है, तो निगेटिव को हमने डायरेक्शन क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब रिवर्स बायस के केस में क्या होगा कि रिवर्स के बायस के केस में जंक्शन पोटेंशियल क्या हो जाता है कि जंक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है, सॉरी हाँ, बैरियर पोटेंशियल क्या होगा कि ज्यादा होगा, बैरियर रेसिस्टेंस काफी ज्यादा होगा। ठीक है,
तो उसमें क्या होगा कि कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन अब लोग देख रहे हैं कि स्टार्टिंग के केस में थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है कि करंट का फ्लो हो रहा है, और थोड़ा सा करंट का फ्लो हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, रिवर्स बायस के केस में करंट क्यों फ्लो हो रहा है। तो इसके कंसेप्ट के लिए आइए हम लोग चलते हैं जो फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए थे। फर्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस एक किए थे कि एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एक्सट्रिंसिक में हम लोग एक्सटर्नल इंप्योरिटी ऐड करते हैं, लेकिन अगर हम लोग एक्सटर्नल इंप्योरिटी नहीं भी ऐड करें तो क्या होगा कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में ड्यू टू द राइज ऑफ टेम्परेचर सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल बी जनरेटेड। ठीक है, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल बी जनरेटेड। तो उस तो ये ज्वाइन होने के क्यों, व्हाई, बिकॉज ऑफ द राइज ऑफ द टेम्परेचर दे विल गेन द हीट एनर्जी, and because of that heat energy gained by the free electrons it will go from valence band to the conduction band। और उसके चलते और उसमें क्या होता है कि अगेन इक्वल नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स पेयर होता है। अब जब हम लोग कोई भी पी टाइप मटेरियल मतलब पेंटावैलेंट इंप्योरिटी करें या ट्राइवैलेंट कर इंप्योरिटी बनाए, कोई भी पी टाइप मटेरियल बनाए या एन टाइप मटेरियल बनाए, तो उसमें ठीक है बाहर से हम लोग इंप्योरिटी ऐड करेंगे। एन टाइप की बात करें तो हम लोग बाहर से इलेक्ट्रॉन्स उसमें ज्यादा होगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसको में टेम्परेचर के राइज करने के चलते भी तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे और होल्स जनरेट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया, बाहर से ऐड प्लस टेम्परेचर राइज के चलते जो फ्री हुआ था, बॉन्ड ब्रेक हुआ था वो, तो दैट इज इन मेजोरिटी ज्यादा। लेकिन कुछ ना कुछ होल्स तो उसमें भी थे, उसमें भी रह गए थे, सो दैट इज नोन एज द माइनॉरिटी कैरियर। अगेन आई रिपीट, चाहे वो पी टाइप मटेरियल हो या एन टाइप मटेरियल हो, उसमें क्या होता है कि पी टाइप मटेरियल मेजॉरिटी विल बी होल्स, बट ऑफ कोर्स certain amount of opposite charge carrier, that is free electrons, will be there, and that is known as the minority carrier. And similar condition for the n type material, majority will be free electrons, but also there is a certain amount of free electrons, okay, and the certain amount of holes, and that is known as the minority carrier. तो अगर हम लोग फिगर में आए और देखें कि जैसा हमने फिगर में किया था, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं, हालांकि ये फिगर मैंने ड्रॉ नहीं किया है, चलिए क्लास में होता था तो बोर्ड पे ही कर देते थे, इसी में डिलीट करके। अच्छा चलिए, तो यहाँ पे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स को तो रिवर्स बायस में सपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन जो होल्स होगा तो होल्स को तो ये सपोर्ट कर रहा है। होल्स यहाँ पे है और इससे पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्टेड है तो ये पुश करेगा। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, इसको निगेटिव टर्मिनल है तो इसको पुश करेगा, तो इसके चलते कुछ ना कुछ करंट फ्लो होगा, एंड दैट करंट इज नोन एज, सिंस दैट करंट फ्लो ड्यू टू द माइनॉरिटी चार्ज कैरियर, हेंस द नेम ऑफ दैट पार्टिकुलर करंट इज द माइनॉरिटी कैरियर। ठीक है, वो क्या होता है, माइनॉरिटी कैरियर होता है। और देखिए, तो ये तो शुरू माइनॉरिटी कैरियर, फिर एक समय और आएगा कि और बढ़ाते गए वोल्टेज, और बढ़ाते गए वोल्टेज, देखिए यहाँ से 10 से 15 वोल्ट, 12 13 14 15 करते गए, तो क्या होगा कि एक्सटर्नल वोल्टेज इतना ज्यादा होगा कि जो बैरियर पोटेंशियल बन रहा था उसी को ब्रेक कर देगा। ठीक है, वो जंक्शन को ही, जो जंक्शन बन रहा था उसी को ब्रेक कर देगा, तोड़ देगा। ठीक है, आप लोग क्लास 12 में पढ़े होंगे, मुझे तो याद है हम लोग के टाइम में पढ़ना था, आप लोग के टाइम में तो और एडवांस ही पढ़ना होगा, ज्यादा ही पढ़ना होगा कि ब्रेकडाउन वोल्टेज। तब ब्रेकडाउन होने के कारण वो क्या करेगा कि पोटेंशियल बैरियर को वो क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, और ब्रेक करने के बाद वो क्या होगा कि फिर से काफी तेजी से यहाँ पे क्या हो जाएगा कि करंट इंक्रीज करना शुरू करेगा, काफी तेजी से करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, राइज करेगा। इवन इस केस में जो ग्राफ है दैट इज मोर शार्पली इन कंपेरिजन टू द फॉरवर्ड बायस। हालांकि करंट का वैल्यू उतना नहीं होगा क्योंकि स्टिल ड्यू टू द माइनॉरिटी।
सर आपका साउंड नहीं आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है। सर वॉइस नहीं आ रहा सर। Now can you hear me? Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir. Yes, Okay. Yes, sir. Okay. Yes, हाँ sir. हो गया, अरे एक बोल दिए बस हो गया। सी तो यहाँ पे क्या होगा कि इस पार्टिकुलर सेक्शन में अगर हम लोग बात करें तो इसमें क्या होगा कि वो माइक्रो एम्पियर में होगा, और ये जो रेंज होगा 5, 10, 15 ये देख रहे हैं कि वोल्टेज इस रेंज में होगा। ठीक है। अब अगेन अगर रियल में बात किया जाए तो केवल इतना ही कंसेप्ट सफिशिएंट नहीं है। अगर डेप्थ में जो सॉलिड स्टेट फिजिक्स वाले लोग पढ़ते हैं ये जंक्शन और कैसे कैसे क्या होता है, रेसिस्टेंस, कैपेसिटेंस, इवन कि आप लोग से पहले वाले सिलेबस में भी डेप्थ में था। ठीक है। तो ये कम से कम 1 सप्ताह से ज्यादा 10 दिन क्लास केवल इसी पे चलती है, लेकिन चलिए आप लोग के सिलेबस में उतना नहीं है तो आप लोग जस्ट एज्यूम कीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है। तो ये हो गया ब्रेकडाउन। रिवर्स बायस भी हम लोग कर लिए। Note, the forward current through a PN junction is due to the majority carriers produced by the impurity. However, reverse current is due to the minority carriers produced due to breaking of some covalent bonds at room temperature. अब चलिए कुछ इंपॉर्टेंट है। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है अभी हमने डिस्कस किया। इट इज द मिनिमम रिवर्स वोल्टेज एट विच पीएन जंक्शन ब्रेक्स डाउन विथ सडन राइज इन रिवर्स करंट। एक जिसपे अगेन ब्रेकडाउन जब भी होता है तो आप लोग याद रखिएगा रिवर्स के लिए होता है, फॉरवर्ड के लिए नहीं होता, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा। फॉरवर्ड के लिए सिमिलर कंडीशन क्या होता है, नी वोल्टेज, इसमें क्या होता है ब्रेकडाउन होता है। व्हाट इज द नी वोल्टेज? It is the forward voltage at which the current through the junction start to increase rapidly. देखिए इसमें सिलिकॉन लिए हैं तो सिलिकॉन डायोड के क्रॉस कितना हो जाएगा 0.7 वोल्ट के बाद तेजी से बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है। इसमें क्या है जर्मेनियम 0.3 के बाद क्या होगा तेजी से बढ़ना शुरू होगा। अगेन आई रिपीट, इन द केस ऑफ फॉरवर्ड बायस द रेंज ऑफ करंट इज इन मिली एम्पियर। ठीक है। और बाकी तो ये जान ही रहे हैं कि 0.3 0.7 है तो इसी रेंज में इंक्रीज करेंगे। मैं आशा करता हूं कि मैंने इतना बार इस चीज को रिपीट किया है कि कम से कम एक फंडामेंटल आप लोग नहीं भूलेंगे कभी। ठीक है। अब चलिए लिमिटेशन इन द ऑपरेटिंग कंडीशंस ऑफ पीएन जंक्शन। इसमें क्या है मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट। मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट क्या होता है? इट इज द हाईएस्ट इंस्टेंटेनियस फॉरवर्ड करंट दैट अ पीएन जंक्शन कैन कंडक्ट विदाउट डैमेज टू द जंक्शन। एक फॉरवर्ड करंट, ठीक है, फॉरवर्ड करंट इंक्रीज करेगा, देख रहे हैं आप लोग एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, लेकिन उसका भी एक रेंज होता है। अगर उस रेंज बहुत ज्यादा कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा कि पीएन जंक्शन को डैमेज करेगा, डायोड की जल जाएगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि चाहे वो फॉरवर्ड हो या रिवर्स बायस हो, कुछ ना कुछ तो रेसिस्टेंस जंक्शन पे होता ही है, चाहे डिप्लीशन लेयर थिन हो या थिक हो, कुछ ना कुछ तो है ही। तो हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द हीट प्रोड्यूस, द फार्मूला फॉर हीट प्रोड्यूस H इज इक्वल टू I स्क्वायर R। तो R कम भी हो तो इसके हीट प्रोड्यूस जो रहा है दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट। तो करंट जैसे ही बढ़ेगा उसका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, तो ये इतना ज्यादा हीट होगा कि वो जंक्शन को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, जल जाएगा। तो मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट का भी क्या होता है, लिमिट होता है। नाउ पीक इनवर्स वोल्टेज, it is the maximum reverse voltage that can be applied to the PN junction without damage to the junction। जितना हम लोग रिवर्स वोल्टेज भी अप्लाई करने का एक लिमिट होता है, उससे ज्यादा हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है। इफ द रिवर्स वोल्टेज अक्रॉस द जंक्शन एक्सीड इट्स PI भी, अगर इसे ज्यादा हम लोग
अप्लाई कर देते हैं, द जंक्शन में बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू एक्सेसिव हीट। द सिमिलर कंडीशन ज्यादा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो जल जाएगा। अगेन हीट का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं I²R, इन अदर टर्म्स इसको हम लोग करते हैं क्या होगा, V²/R। तो V वोल्टेज के क्या हो जाएगा, वोल्टेज के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो अगेन दैट इज अ प्रॉब्लम फॉर अस। ठीक है, मैक्सिमम पावर रेटिंग, इट इज द पावर क्या, कि जितना पावर को वो क्या कर सके, कि जितना पावर को वो टॉलरेट कर सके, उससे ज्यादा अगर पावर हो जाएगा, वही ज्यादा हीट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि फिर से वो डैमेज हो जाएगा। इट इज द मैक्सिमम पावर दैट कैन बी डिसिपेटेड एट द जंक्शन विदाउट डैमेजिंग इट। The power dissipated at the junction is equal to the product of junction current and the voltage across the junction। ठीक है, पावर हम लोग जानते हैं कि पावर क्या था, VI होता है। हम लोग बहुत पहले से जानते हैं कि बहुत पहले से जाने या नहीं, लेकिन कम से कम आप लोग फर्स्ट ईयर में एलिमेंट्स ऑफ बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़े होंगे। ठीक है, नाउ व्हाट इज सेमीकंडक्टर डायोड। हम लोग हर जगह पीएन जंक्शन नहीं बोलते हैं, हम लोग क्या बोलते हैं, डायोड पढ़ते हैं कि डायोड ऐसा डायोड की कैरेक्टरिस्टिक। व्हाट इज डायोड, बेसिकली अ पीएन जंक्शन इज नोन एज सेमीकंडक्टर डायोड। जो पीएन जंक्शन होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सेमीकंडक्टर डायोड कहते हैं। ठीक है, व्हाट आर द सिंबल ऑफ डायोड, सिंबल ऑफ डायोड होता है इस तरह से, एक ट्रायंगल की तरह एक एरो बना हुआ रहता है, यहाँ पे एक बार रहता है, और क्या होता है कि इस तरीके से। अब इसे पहचान क्या होता है कि कौन सा पॉजिटिव और कौन सा निगेटिव साइड है, तो यह जो यहाँ पे एक बार बना हुआ है वो क्या है, ये निगेटिव साइड का रिप्रेजेंट करता है। तो हम लोग जब डायोड को हमें कनेक्ट करना होगा और डायोड को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट करना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे कि इस साइड हम लोग पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अप्लाई करेंगे, इस साइड क्या करेंगे, निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी अप्लाई करेंगे। उसी तरह से रिवर्स केस में करना होगा, तो इस साइड हम लोग क्या करेंगे कि पॉजिटिव और इस साइड निगेटिव। अनदर सिग्निफिकेंस है क्या है कि एक एरो इंडिकेट कर रहा है। एरो क्या इंडिकेट करता है, एरो है जो फ्लो ऑफ करंट को इंडिकेट करता है। तो देखिए याद कीजिए फिगर पीएन जंक्शन का जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, उसमें करंट, उसमें इलेक्ट्रॉन्स की तरफ फ्लो कर रहा था, इलेक्ट्रॉन्स एन से पी साइड की तरफ फ्लो कर रहा था। ठीक है, और एक लूप बना रहा था। हम लोग जानते हैं कि व्हाट इज द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ करंट, conventional direction of current is opposite to the flow of electrons, opposite to the direction of flow of electrons। जिधर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करता है उसको उल्टा लेते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहा था N to P साइड, तो ये इसमें क्या हो जाएगा कि करंट की तरफ फ्लो करेगा वो P to N साइड, और वही एरो जो है इसमें जो है वो इंडिकेट करता है कि करंट को फ्लो को इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, so this is about the symbol of diode, and with this the end of today class. Now anyone have confusion, then you can unmute and ask. जिनको नहीं है they can leave the class। सर पीडीएफ भेज दीजिए ग्रुप में। हाँ, गूगल ग्रुप में नहीं भेजेंगे, गूगल क्लासरूम। सर आइडियल कंजक्शन बताइए ना। क्या सर आइडियल कंजक्शन जो आप बता रहे थे तो समझ में नहीं आया था थोड़ा। आइडियल कंडक्शन फॉरवर्ड बायस के केस में, यस सर, आइडियल कंडक्शन में जो ए भी कंज्यूम होता है। क्या कंज्यूम होता है, फिर से आप बोलो, क्वेश्चन आप क्लियर कीजिए, मैं नहीं समझ रहा हूँ। सर आइडियल कंजक्शन में जो ए भी कंज्यूम होता है ना, वही हमको पूछना है सर। मैं नहीं समझ, ए भी कंज्यूम होता है ऐसा तो मैंने कुछ नहीं बोला, आप बोले ना फॉरवर्ड रिवर्स या फिर कुछ। वो अभी हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं फॉरवर्ड में, सर फॉरवर्ड में हमको पूछना था। हाँ, फॉरवर्ड बायस में। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा कि देखिए इस फिगर पे आइए, तो इस पे क्या है कि, अच्छा एक मिनट में आपको बताता हूँ, कुछ लोग लिव कर रहे हैं। आप लोग गूगल क्लासरूम में क्या कीजिएगा, गूगल क्लासरूम में डेली क्लास नोट्स में करते जाऊंगा, साथ ही VK मेहता बहुत ही इजी लैंग्वेज में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग VK मेहता को ब्लाइंडली फॉलो करें, जो चीज उसमें नहीं दिया हुआ है बाद में मैं इंडिकेट करूंगा।
और साथ में अभी आप लोग के जमाने में क्या है, बहुत सारा यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, एनिमेशन है, तो यूट्यूब पे देखिएगा तो और अच्छे कुछ कुछ एनिमेशन करके इलेक्ट्रॉन से ऐसे जा रहा है, बहुत सारा है, तो उससे और आप लोग को क्या हो सकता है कि और अच्छे से समझ में आ जाएगा। हाँ, और बक्सर भोजपुर वाले कल जो लैब था उस टाइम मैंने एक्स्ट्रा क्लास इस चलते नहीं लिया, क्यों? क्योंकि मैं भी सोच रहा था एक्स्ट्रा क्लास लेने के लिए, क्योंकि आप लोग का कंबाइंड क्लास चलता है विथ सीएससी बीएससी बख्तियारपुर, तो फिर क्या हो जाता कि गड़बड़ हो जाता, इसलिए थ्योरी के टाइम में ही लिए, एक्स्ट्रा क्लास नहीं लिए उस टाइम। हाँ चलिए अब देखिए, जिनको डाउट है उनकी मैं बात कर रहा हूं कि ये क्या हो रहा कि यहाँ पे होल्स हैं, होल्स के साथ क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड है, तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी होल्स को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, पुश करेंगे, इधर किधर, जंक्शन की तरफ। सिमिलरली इधर क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ क्या कनेक्टेड है, निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड है, निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी कनेक्टेड है, तो वो क्या करेगा कि वो इसको क्या करेगा, इसको इधर पुश करेगा, तो पुश करेगा तो क्या होगा कि इधर जाना चाहेगा, लेकिन पहले क्या था कि इलेक्ट्रॉन्स को यह जो निगेटिव बैरियर लेयर है वो रोक रहा था, होल्स को क्या कर रहा था कि ये पॉजिटिव बैरियर लेयर है वो रोक रहा था। लेकिन अब क्या करेगा कि जैसे जैसे इसको एक्सटर्नल दिए हैं, तो एक्सटर्नल एनर्जी के चलते ये क्या करेगा कि इसको भी क्या कर जाएगा, क्रॉस कर जाएगा। अब बताइए और कोई डाउट? सर आप कल लिए थे लैब? नहीं, हम लोग थ्योरी कवर नहीं किए थे इसलिए लैब नहीं हुआ था। आप इस बार फ्राइडे को कंबाइन लैब होगा। सर तो किस पे होगा लैब सर? क्या सर लैब किस पे होगा, वर्चुअल लैब पे होगा? हाँ ऑफ कोर्स वर्चुअल ही होगा। हम लोग दूसरा क्या ऑप्शन है, वर्चुअल लैब होगा। आप गूगल क्लास में पोस्ट तो किए हैं, आप लोग देखिए उसको, इंट्रोडक्शन ले लीजिए कैसे कैसे करना है, पढ़ लीजिए। सर अटेंडेंस आपने बनाया है ना, अब उसमें मैसेज में कर दीजिए। नहीं बनाना है सर, नहीं उसमें नहीं बनाना है, अभी देख रहे हैं, नहीं होगा तो फिर गूगल सीट देंगे, लेकिन अभी आप लोग मैसेज में ही नेम, रोल नंबर और कॉलेज का नाम 3 चीज वो कर दीजिए। सर पीडीएफ सेंड कर दीजिएगा, मैं सर्च कर। अरे आप अभी क्लास ज्वाइन कर रहे हैं क्या? नहीं सर। तो मैंने कितनी बार बोला कि मैं गूगल क्लासरूम में, आप एक ही चीज को क्यों बार बार रिपीट करते हैं? ठीक है सर, मैं डेली क्लास के बाद पीडीएफ जो है वो गूगल क्लासरूम में अपलोड कर दूंगा। एनी डाउट, एनी मोर डाउट? और किसी को डाउट है? यस सर। हाँ बताएं। सर जब रिवर्स करते हैं तो करंट फ्लो होता नहीं है, तो क्या हम ये बोल सकते हैं ओपन स्विच है? क्या है? जब रिवर्स वाइस में करंट फ्लो नहीं होता ना, इट्स बिहेव लाइक इंसुलेटर। नहीं, रिवर्स बायस के केस में क्या होगा कि करंट फ्लो होगा, लेकिन वो होगा ड्यू टू द माइनॉरिटी कैरियर जो हमने डिस्कस किया, ठीक है, और उसका वैल्यू काफी कम होगा। देख रहे हैं कि कितना में हो रहा है, माइक्रो एम्पियर में। लेकिन जब आइडियल कंडीशन की हम लोग बात कर रहे हैं कि जनरल, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं। हम लोग मान के चलते हैं कि आइडियल केस में फॉरवर्ड बायस में पूरा का पूरा करंट फ्लो हो रहा है, और रिवर्स बायस में ये कंडक्ट ही नहीं कर रहा है, जीरो। जैसे बहुत सारा मैथ वगैरह भी पढ़े होंगे आप लोग, तो मैथ में देखते हैं कि बहुत ज्यादा पॉइंट के बाद रहता है 0 0 0 0, बहुत सारा, तो हम लोग क्या करते हैं कि नेग्लेक्ट कर देते हैं। डेसिमल के 2 डिजिट तक हम लोग कंसीडर करते हैं, उसके बाद का चीज नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो हम लोग जो आपने पीआई करे, हम लोग जो पढ़ेंगे, हम लोग जो अभी पढ़ेंगे या आगे नेक्स्ट क्लास में हम लोग रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। जो रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे उसमें हम लोग क्या करेंगे कि उसको हम लोग आइडियल ही एज्यूम करेंगे जब तक, हाँ एक और चीज, जब तक अनलेस एंड अनटिल स्टेटेड वी एज्यूम द डायोड टू बी आइडियल, उस केस में क्या होगा कि रिवर्स में कोई करंट नहीं और फॉरवर्ड में पूरा का पूरा करंट फ्लो होगा। तो सिंबल आपको ये बोलिए। हाँ डायोड वाला सिंबल थोड़ा फिर से बता दीजिएगा सर, वो थोड़ा सा नेगेटिव अच्छा देखिए, हाँ देखिए, थोड़ा सा इसमें और आप लोग देख लीजिएगा फिगर, मैंने बहुत ठीक से ये दो नहीं, यहाँ पे गलती आ गया है, एक ही है कि जस्ट एक एरो की तरह होता है, समझ रहे हैं ना, एक ट्रायंगल बना रहेगा, उसके इस साइड में क्या होगा कि एक बार होगा, लाइनिंग होगा,
यह जो है जो लाइनिंग वो निगेटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है, और इस साइड जो है जो क्या है कि पॉजिटिव टर्मिनल को इंडिकेट करता है। मींस इस साइड हम लोग पी को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को करेंगे, इस साइड हम लोग निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को करेंगे आइडियल कंडीशन में। और यह जैसे कि हमने बताया कि इलेक्ट्रो जो एरो है जो करंट का फ्लो को इंडिकेट कर रहा है, करंट का फ्लो को इंडिकेट कर रहा है, तो करंट का फ्लो का डायरेक्शन कैसा होता है, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर फ्लो कर रहा था, एन टू पी साइड में। यहाँ पे तो करंट का किधर फ्लो करेगा, करंट का डायरेक्शन ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो बहुत सारे पहलू पता नहीं किसने क्यों ले लिया, हालांकि होना तो चाहिए था उल्टा, जैसे क्योंकि करंट के इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो के चलते करंट फ्लो करता है, तो ऐसे लेना चाहिए था। लेकिन चलिए पहले जो भी एग्जाम्पल ले लिया वो ले लिया गया, तो उसका करंट का फ्लो किधर होगा कि अपोजिट, तो पी टू एन साइड में, और वही एरो इंडिकेट कर रहा है कि ऐसे मैंने करंट इधर जा रहा है।